फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक लेसन का एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ए टॉटोलॉजी और ए कॉन्ट्रडिक्शन और ए कंटिंजेंसी। ओके, हम लोग लर्न किया है व्हाट इज ए टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी. Tautology means if all the statements, all the truth values of corresponding to a statement pattern is T, then it is called a tautology. And if it is F, then it is a contradiction. If it is mixed like T, F, or T and F are mixed up, then it is contingency. Okay, so let us check it. Here the statement pattern is given. First one, P and Q, only two statements are given. Symbol statements are there, so we form 4 rows. So sometimes by mistake I'll tell it as a column also. It is row only. Horizontal arrangements are only rows. Okay, so P and Q. So P is T, T, F, F. Q is T, F, T, F. Okay, this marking is coming. This is of the previous page. It is written little dark, so it came in the next page. It is only T, single T. Yeah. Now P and Q. P and Q में T T रहेगा तो T. Okay, बाकी सब false. Next Q और P. Q और P में reverse order. Q और में कैसे एफ एफ रहेगा तो एफ, बाकी सब टी. नाउ वी हैव टू कनेक्ट दिस टू पी एंड क्यू और पी को इम्प्लाइज से कनेक्ट करना है. इम्प्लाइज से कनेक्ट करेंगे तभी टी इम्प्लाइज एफ रहेगा तो एफ. इधर टी इम्प्लाइज एफ नहीं है किधर भी, तो ये सब टी ही आएगा. टी इम्प्लाइज एफ रहेगा तो एफ. इधर टी इम्प्लाइज टी इम्प्लाइज एफ आना चाहिए. टी इम्प्लाइज एफ किधर भी नहीं है. दिस इज एफ इम्प्लाइज एफ. एफ इम्प्लाइज एफ नहीं है. टी इम्प्लाइज एफ रहेगा तो एफ, अदरवाइज टी. तो ये लास्ट कॉलम देखो, ये गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का ट्रूथ वैल्यू, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज आर टी ओनली. सो व्हाट वी विल राइट इट एज ऑल द ट्रूथ वैल्यूज in the last column are T. Therefore, the given statement pattern is a tautology. ओके, हो गया. इतना लिखना है. इधर एक क्वेश्चन, P implies Q if and only if negation P or not P or Q. Okay, so P and Q, two statements are there, so we made the truth values or the table of these. Now P and Q, if two statements are there, then we will write the truth values of P as T T F F, then Q as T F T F. Okay, now just observe the given statement pattern. इसमें क्या क्या चाहिए वो पहले हम लोग, इधर P Q दिया है तो P Q, and immediately you can write this P implies Q here, but I wrote this negation P here. Okay, no problem, you can write P implies Q first, then negation P also. Okay, now negation P is just opposite of this P. T T F F, then this will be F F T T. ओके, P implies Q क्या रहेगा? implies में T implies F रहेगा तो F. T implies F सिर्फ ये वाला, सो ये F रहेगा, बाकी सब T. वो भी हो गया. नेगेशन P और Q, नेगेशन P इधर है और Q इधर है, तो रिवर्स ऑर्डर में जाना है. सो और में कैसा है, दोनों F रहेगा तो F नहीं तो T. इधर सिर्फ ये सेकेंड नेगेशन P और Q,
सो सेकेंड रो में दोनों एफ आ गया तो ये एफ, बाकी सब टी लिखेंगे. ओके क्लियर. नाउ P implies Q if and only if negation P और Q. P implies Q इधर है, negation P और Q इधर है, तो ये दोनों को हम लोग if and only if यूज करके कनेक्ट करना है. if and only if में दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, इधर दोनों सेम है तो ट्रू लिखा, इधर दोनों सेम है तभी भी ट्रू, इधर दोनों सेम ट्रू, लास्ट वन ऑल्सो true only because all these combinations are same. Okay, now see last column we got all the truth values as T. All the truth value T रहेगा तो tautology. Given statement pattern is a tautology. So what you will write? All the truth values in the truth values in the last column are T. Therefore, the given statement pattern is a tautology. Okay, so this way you will solve all the sums. Now we go to the third sum. So third sum, negation of negation P and negation Q or Q. Okay, so one by one we will make the columns. Two statements are there, so P, Q, 4 rows will be there, T, T, F, F, T, F, T, F. Now what all we require from this statement we will get. See here, इधर अपने को negation P चाहिए, negation Q चाहिए, so इसका first हम लोग लिखेंगे truth values. फिर negation P bracket part, एकदम अंदर का bracket पहले, so negation P and negation Q का bracket वो पहले लिखना है, फिर उसका negation वापस उसका negation find out करना है, उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट पैटर्न का लास्ट कॉलम में आएगा. ओके, सो हम लोग वन बाय वन करेंगे. नेगेशन P मतलब P का ऑपोजिट आ गया, टी टी एफ एफ है तो एफ एफ टी टी, एंड नेगेशन Q टी एफ है तो एफ टी एफ टी. ओके, नाउ नेगेशन P एंड नेगेशन Q ये दोनों का एंड से कनेक्ट करना है. सो दोनों में टी रहेगा तो टी, नहीं तो एंड का ट्रूथ टेबल याद करने का इधर. सो एंड में दोनों टी रहेगा तो टी, अदरवाइज फॉल्स. इसमें लास्ट रो में दोनों टी आ रहे तो इधर टी लिखो, बाकी ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगा. ओके, नाउ इसका वापस नेगेशन, दैट इज एफ 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 टी रहेगा तो टी 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 F आएगा. Now negation of that is this column और Q, इसके साथ और Q कनेक्ट करना है और यूज करके. ओके, सो ये negation of negation P and Q, ये कॉलम इधर फिंगर रखो, फिर Q उसको और यूज करना है. तो और में क्या है, दोनों F रहेगा तो F, तो ये लास्ट रो F F तो F, बाकी सब ट्रू आएगा. Okay, T, T, T. Now you will write all the truth values are tautology and T and F mixed. दोनों मिक्स हो के आया है, दोनों मिक्स हो के आया तो क्या करेंगे, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दो सब आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल है रहेगा लेकिन ऑल द वैल्यूज आर टी, देन टॉटोलॉजी. इफ ऑल द वैल्यूज आर आइडेंटिकल एंड इट इज फॉल्स, देन इट इज कॉन्ट्रडिक्शन. हियर दे आर नॉट आइडेंटिकल नहीं है तो फिर एक ही ऑप्शन है, कंटिंजेंसी. ओके, सो ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम, ट्रूथ वैल्यूज
truth values in the last column are not identical, therefore it is the given statement pattern is a contingency. So I'm writing in short, it is a contingency. Okay, so this much you have to write. Identical रहेगा तो there are two options, either tautology or contradiction, depends on the values of last column. Okay, इधर identical नहीं है तो एक ही option है contingency. Now fourth one क्या है? P implies Q and Q implies P. ओके पहले P Q लिखा, ऑलरेडी लिखा है मैंने इधर. P implies Q, फिर P implies Q and Q, फिर and their pattern in the last column. ओके P implies Q देखो, P implies Q में कैसा है? T implies F, बाकी सब true, T आएगा. Now P implies Q and से कनेक्ट करो, ये रिवर्स ऑर्डर में जाओ. T and T दोनों T रहेगा तो T, अदरवाइज फॉल्स. दोनों T इधर भी है तो बाकी दोनों फॉल्स. ओके नाउ ये जो कॉलम P implies Q and Q implies P, T and F रहेगा तो F, T and F रहेगा तो F, T F. इधर बाकी किधर T implies F नहीं है तो बाकी सब T. Okay, so here again we got the different values, truth values. Okay, so again we will repeat the same sentence as above. Previous question का जैसे हम लोग लिखेंगे truth values of the last column are not identical, therefore it is a contingency. Okay, it is a contingency. Clear? Now fifth one, P implies Q and negation Q implies negation P. P implies Q, तो P Q लिखने के बाद negation P लिखा है मैंने. negation P and negation Q चाहिए, इसके लिए negation P and negation Q immediately लिखा. उसके बाद ये जो ब्रैकेट P implies Q, फिर P implies Q and negation Q, फिर पूरा ब्रैकेट. ओके पूरा स्टेटमेंट पैटर्न. सो नेगेशन P लिखो FF TT, बिकॉज इधर TT FF है तो उसका जस्ट ऑपोजिट आएगा. एंड Q का TF है तो FT FT. नाउ P implies Q देखो, P implies Q में कैसे? T implies F, बाकी सब T. नाउ P implies Q and negation Q. P implies Q इधर है, negation Q इधर है, तो T implies and से कनेक्ट करना है. एंड से कनेक्ट करेंगे तो T and T रहेगा तो T, नहीं तो फॉल्स. सो बाकी सब फॉल्स आएगा बिकॉज एक ही कॉम्बिनेशन T and T आ रहा है. नाउ ये जो कॉलम implies negation P, ये कॉलम एंड नेगेशन P इधर है, तो ये दोनों को अपने को कनेक्ट करना है. ओके तो इम्प्लाइज है, इम्प्लाइज में कैसा है? ये पहले आएगा, इम्प्लाइज ये बाद में. तो T इम्प्लाइज F किधर रहेगा तो F आएगा. इधर T इम्प्लाइज F नहीं है तो सारे वैल्यूज T आएगा. ओके सो the truth values in the last column.
आर टी, therefore it is a, क्या है, it is a tautology. Okay, now sixth one, P, if and only if Q and P implies not Q. तो P Q का ट्रूथ वैल्यू लिखा, इधर थोड़ा T T F F आना चाहिए, बाय मिस्टेक T F लिख लिया इधर भी, T T F F, ओके, फिर T F. नाउ इसमें नेगेशन क्यू चाहिए, इसके लिए नेगेशन क्यू पहले लिखा, नेगेशन क्यू है T F हैगा तो F T. ओके, नाउ P इफ एंड ओनली इफ क्यू चाहिए, फर्स्ट ब्रैकेट इधर, तो P इफ एंड ओनली इफ में सेम आएगा तो T डिफरेंट आएगा तो सेम इधर भी है, तो T डिफरेंट आएगा तो फॉल्स. ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम है, इसके लिए T इधर आ गया, ये दोनों फॉल्स आ गया. नाउ P इम्प्लाइज नेगेशन Q, P इम्प्लाइज नेगेशन Q फर्स्ट एंड थर्ड, तो इम्प्लाइज में T F रहेगा तो F, इधर बाकी सब T आएगा. T इम्प्लाइज F एक ही है ना कॉम्बिनेशन, इसके लिए F आ गया, बाकी सब T आ गया. नाउ P इफ एंड ओनली इफ Q, ये जो कॉलम एंड ये लास्ट कॉलम, मीन्स ये सेकेंड लास्ट कॉलम, सो ये दोनों हम लोग एंड से कनेक्ट करना है, एंड से कनेक्ट करेंगे तो T एंड T आएगा, बाकी सब F आएगा. अगेन नॉट आइडेंटिकल, ओके, both are coming, F and T are coming, so what you will write? I'm not writing in full sentence, you will add the sentence that the last column or the truth values in the last column are not identical, therefore it is a contingency. Okay, so it is a contingency only. उसका रीजन आप लोग लिखना है, it is a, क्या रीजन, contingency. Clear? Now we go to the next question. The one, negation of negation Q and P and Q. Okay, P Q लिखा, सिंपल है, सो P and Q लिखा, उसका ट्रूथ वैल्यू T F F. नाउ नेगेशन Q चाहिए, सो नेगेशन Q इज रिटन फर्स्ट, उसके बाद ये जो ब्रैकेट नेगेशन Q एंड P इधर लिखना है, फिर उसका नेगेशन लास्ट कॉलम फुल पैटर्न. सो नेगेशन Q पहले लिखो, नेगेशन Q आएगा, T F है तो Q T F है, तो नेगेशन Q और नॉट Q क्या रहेगा, F T. ओके, नाउ नेगेशन Q एंड P, नेगेशन Q इधर P इधर, तो एंड यूज करेंगे तो T एंड T है, बाकी सब फॉल्स आएगा, एक ही T एंड T है, वो T आ गया, बाकी फॉल्स आ गया. ओके, नाउ इसका नेगेशन लिखना है, जस्ट रिवर्स, मीन्स जस्ट ऑपोजिट, F का T का F, T. ओके, नाउ दिस कॉलम एंड Q और ये जो सेकेंड लास्ट कॉलम, Q इधर है और ये जो कॉलम एंड से कनेक्ट करना है, तो T एंड T और किधर T एंड T आ रही है, ये वाला भी T एंड T, वो भी T आ गया, बाकी सब फॉल्स, बाकी ए फॉल्स आ गया, ए भी फॉल्स आ गया. ओके, नाउ what you will write, they are not identical, so let last column, truth values of the last column, truth values of the last column are not identical, therefore it is a contingency. Okay, now eighth one, P and not Q if and only if P implies Q. So P Q लिखा, not Q पहले, फिर P and not Q, उसके बाद ये जो if and only if के बाद ये जो ब्रैकेट P implies Q, फिर ये दोनों को if and only if से कनेक्ट करना है. ओके, सो नॉट Q पहले लिखो, F T
अभी रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है, लर्न किया है। टी एफ क्यू है, टी एफ तो नॉट क्यू, एफ टी। ओके, नाउ पी एंड नॉट क्यू, पी इधर है, नॉट क्यू इधर है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो एंड से कनेक्ट करेंगे तो टी आएगा, टी, बाकी सब फॉल्स। एक ही टी एंड टी आ रहा है, बाकी फॉल्स, रिमेनिंग ऑल आर डिफरेंट, सो फॉल्स। नाउ पी इम्प्लाइज क्यू, देखो पी इम्प्लाइज क्यू में सेकेंड, टी इम्प्लाइज एफ, बाकी टी। नाउ ये जो दोनों कॉलम्स हम लोग इफ एंड ओनली इफ से कनेक्ट करने। इफ एंड ओनली इफ में कैसा है, सेम रहेगा तो टी, डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स, एफ। इधर ऑल द कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट ओनली, सो एक ही ट्रूथ वैल्यू आएगा सब में, एफ आएगा। ओके, एफ आएगा, एफ मतलब फॉल्स आ गया, ऑल द ट्रूथ वैल्यूज आर फॉल्स, सो ट्रूथ वैल्यूज in the last column are all the truth, you can add all the truth values in the last column are f। f आ गया तो it is a contradiction, f आएगा तो contradiction। okay, now ninth one, negation p implies q and p and r। okay, p q r, three statements are there, so we know there will be 8 rows, p q r। so different combinations हम लोग बनाएंगे, so 8 rows will be there in the truth table। so p का t 4 times, f 4 times, t f f q का, R will be alternate TF। okay, now negation P आएगा, negation P T 4 बार T रहेगा तो negation P में 4 बार F, 4 टाइम F आएगा। ओके, एंड F 4 टाइम्स रहेगा तो इसका negation में T। ओके, नाउ वी राइट negation P implies Q। ओके, negation P implies Q, negation P इधर है, implies Q इधर है, सेकेंड एंड फोर्थ कॉलम। सो implies में T implies F रहेगा तो T implies F, सो T implies F रहेगा तो F, सो ये लास्ट दो रो F आएगा, बाकी सब T। ओके, बाकी T आएगा। नाउ P एंड R, P फर्स्ट एंड थर्ड, P एंड R में एंड से कनेक्ट किया तो T एंड T आएगा, T एंड T इधर भी थर्ड भी है, फिर T एंड T नहीं है तो बाकी सब फॉल्स आएगा। ओके, सो F ओके, नाउ ये जो P नेगेशन P इम्प्लाइज Q एंड P एंड R, ये दोनों को एंड से कनेक्ट करना है। एंड से कनेक्ट करेंगे तो T एंड T, फिर T एंड T, देन उसके बाद T एंड T नहीं है तो बाकी सब F, फिर F, ऑल द रिमेनिंग आर F ओनली। ओके, सो हियर अगेन दे आर नॉट आइडेंटिकल, T F दोनों आ गए इसमें, तो दोनों आइडेंटिकल नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, truth values in the last column are not identical, therefore it is a, I am not writing that sentence, therefore it is a contingency। दोनों identical नहीं है तो contingency। okay, so you have to write the reason here first। last row, the truth values in the last column are not identical, therefore it is a means what, it means what, given statement pattern is a contingency। okay, now 10th one थोड़ा लंबा है। P implies not Q or R if and only if not P implies Q implies R। तो मैंने ऐसा बनाया है, 2 रो एक्स्ट्रा, इधर एक रो एक्स्ट्रा बनाया बीच में, बताती हूँ क्यों। P Q R 3 है, सो 8 रोज बनाया,
4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ ऑल्टरनेट किया है, इधर 1 टाइम टी एंड एफ ऑल्टरनेट किया है। अभी नेगेशन क्यू चाहिए इसमें, तो नेगेशन क्यू, फिर नेगेशन क्यू और आर का एक कॉलम, उसके बाद P implies negation Q और R का full this left hand part of this if and only if. Now A ब्रैकेट के बाहर एक नेगेशन है, लेकिन अंदर की तरफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे Q implies R फर्स्ट, फिर P implies Q implies R, फिर नेगेशन। तो इधर लंबा हो जाएगा टेबल, इसके लिए मैंने इसका थोड़ा छोटा करने, बड़ा टेबल बनाना पड़ेगा, इधर स्पेस कम पड़ेगा, तो और नीचे ड्रॉ करेंगे तो ट्रूथ वैल्यूज लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ये छोटा करने के लिए थोड़ा इधर शॉर्टकट यूज़ किया है। ये जो स्टेटमेंट पैटर्न लेफ्ट हैंड साइड का ये वाला ए यूज़ किया, और ये जो P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R को मैंने B यूज़ किया, so that I can avoid writing this full in this bracket, sorry in this column। इसके लिए थोड़ा छोटा कॉलम बनने को हुआ, इसके लिए B लिखा। सो इसका फुल नेगेशन के बदले मैंने नेगेशन B लिखा शॉर्ट में। ओके, तो फिर फाइनल स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ए मीन्स इसका इफ एंड ओनली इफ का लेफ्ट हैंड साइड, ए इफ एंड ओनली इफ नेगेशन B, बिकॉज आई टुक दिस ब्रैकेट पार्ट एज B, तो इसका नेगेशन राइट साइड में। ओके, नाउ वी कंटिन्यू करेंगे। नेगेशन क्यू लिखो, क्यू का टी टी एफ एफ, दो बार टी टी एफ एफ यूज किया, तो नेगेशन क्यू में क्या आएगा? नेगेशन क्यू में आएगा एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी, एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी। ओके, नाउ नॉट क्यू और आर, नॉट क्यू इधर है, आर इधर है। ओके, इसको और से कनेक्ट करना है। सो नॉट क्यू और में कैसा है? दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, इधर दोनों फॉल्स है, इधर भी दोनों फॉल्स है, फॉल्स, बाकी सब ट्रू आएगा। ओके, नेक्स्ट P इम्प्लाइज नॉट क्यू और R, नॉट क्यू और R इधर है, P इधर है, तो P इम्प्लाइज नॉट क्यू और P इम्प्लाइज में T इम्प्लाइज F रहेगा तो F, T इम्प्लाइज F और किधर नहीं है, तो बाकी सब ट्रू आएगा, बाकी सब ट्रू आएगा। नाउ Q इम्प्लाइज R, Q एंड R, Q इम्प्लाइज R में T इम्प्लाइज F, F, T इम्प्लाइज F, F, T इम्प्लाइज F इधर भी है, F लिखा, T इम्प्लाइज F और किधर नहीं है, तो बाकी सब ट्रू, सॉरी ट्रू। ओके, नाउ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R, तो ये P एंड दिस कॉलम, सो इम्प्लाइज अगेन आ गया, T इम्प्लाइज F, F, और किधर T इम्प्लाइज F आ रहे क्या? नहीं आ रहा है, तो बाकी सब T आएगा। ओके, नाउ A एंड नेगेशन B लिखो, नेगेशन B इसका T F, T के बदले F आएगा, F के बदले T, इधर F F F F F F। ओके, नाउ A इफ एंड ओनली इफ नेगेशन B, इफ एंड ओनली इफ में कैसा है? सेम रहेगा तो ट्रू, डिफरेंट रहेगा तो फॉल्स, इधर ऑल द कॉम्बिनेशंस आर डिफरेंट, सेम आ ही नहीं रहा, इसके लिए हम लोग को फॉल्स लिखना है। ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर बिकमिंग F, मतलब is all the values are F, so ये जो statement pattern is a contradiction। okay, so you will write in detail that the truth values, all the truth values of the last column or in the last column are F, therefore the given statement pattern or it is a contradiction। okay, I hope you understood all these sums। okay, now next part we will do in the next video। okay, thank you।